Hello student, today we will start our second chapter. So now open your book. Yes, our second chapter name is After 20 Years. The policeman on the beat twirled his club as he walked along the street. With his stout form and slight swagger, he often stopped and checked if the door was properly locked, as he kept a watchful eyes on the peaceful road. So एक पुलिस वाला था जो जैसे रोज की तरह से वो स्ट्रीट में घुमा करता था, एक दौरा किया करता था, सब जगह को चेक करता हुआ कि जो दुकानें हैं वो अच्छे से बंद हैं कि नहीं, रोड पर सारी चीजें शांति बनी हुई है या नहीं, इस तरीके से. There was few people on the road, though it was barely 10 o'clock at night. The area was one that kept early hours. Through now and then you might see the lights of store. Most of the door was closed. तो उसने कहा कि जैसे कि बस 10 रात के करीब 10 बजे हुए थे, जिसमें बस कुछ ही लोग रोड पर घूम रहे थे. बस सारे डोर जो दुकानों के सारे दरवाजे वगैरह सब बंद थे, बस कुछ लाइट्स वगैरह ही रोड पर दिखाई दे रही थी. Midway of block, the policeman suddenly slowed down. He saw a man leaning against the doorway and dark hardware store. So जब रास्ते में पुलिसमैन अचानक से थोड़ा स्लो हो गया, उसने देखा कि एक आदमी हार्डवेयर की दुकान के पास में खड़ा हुआ है. As the policeman walked up to him and the man spoke up quickly. So जब पुलिसमैन उसके पास जाने लगा, तभी अचानक से वो आदमी बोल पड़ा. It's all right, officer, he said. I am just waiting for a friend. It is an appointment made 20 years ago. Sounds a little funny to you. It doesn't it? Well, I will explain if you had liked to me. 20 years ago, there used a restaurant where this store stand now. Big Joy Brandy Restaurant. तो वहाँ पे तभी उस आदमी ने कहा कि ऑफिसर सब सही है ना, मैं यहाँ पर अपने दोस्त का इंतजार कर रहा हूँ जो एक अपॉइंटमेंट फिक्स की गई थी कितने साल पहले, 20 साल पहले. ये आपको थोड़ा मजाक लगता होगा, पर हाँ ये सच है. 20 साल पहले मैंने और मेरे दोस्त ने यहाँ पर एक रेस्टोरेंट हुआ करता था जिसका नाम था बिग जॉय ब्रेडी रेस्टोरेंट. हम लोगों ने यहाँ पर प्रॉमिस करा था कि 20 साल बाद हम इसी समय पर इसी जगह पर मिलेंगे. It was turned down 5 years ago, said policeman. तो पुलिसमैन ने बोला कि वो 5 साल पहले ही यहाँ से रेस्टोरेंट हटा दिया गया है. The mess shifted and dim light from the neighboring stores showed the pale and square jawed face with keen eyes and little white scare near his eyebrow. Right eyebrow. His scarpin was the oddly set large diamond. तभी वो आदमी बोला, हो सकता है जो आदमी यहाँ पर था उसने कहीं और शिफ्ट कर लिया हो. और उस आदमी ने बड़े अच्छे से कपड़े पहने हुए थे, उसकी बड़ी बड़ी आंखें चमक रही थी, उसकी आईब्रो के नीचे एक व्हाइट कलर का निशान था, उसने एक स्कार्फ पहना हुआ था जिसमें एक बड़ा सा डायमंड लटक रहा था. 20 years ago tonight, said the man, I denied here to Big Joy Brady with Jimmy Wells, my best friend and the first champ in the world. So तभी उसने कहा कि 20 साल पहले मैं और मेरा दोस्त बिग जॉय ब्रेडी रेस्टोरेंट में, जिमी उसके दोस्त का नाम था, हम यहाँ पर लंच कर रहे थे. He had I were raised here in the New York just like two brothers. हम यहाँ पर रहते थे जैसे कि हम दोस्त थे, पर हम एकदम भाई की तरह यहाँ पर रहा करते थे. I was 18 and Jimmy was 20. मैं 18 साल का था और जिम्मी 20 साल का था. The next morning I was going off to the west to make my fortune. अगली सुबह ही मुझे वेस्ट की तरफ जाना था अपना फ्यूचर बनाने के लिए. You could not have dragged Jimmy out of New York. He thought it was the only place of earth. तभी पुलिस मैन बोलता है कि तुम जिमी को अपने साथ क्यों नहीं ले गए. तो तभी मैन बोलता है क्योंकि जिमी को नहीं जाना था, जिमी को न्यूयॉर्क ज्यादा पसंद था, इस वजह से वो मेरे साथ नहीं गया. Well, we agreed the night that we would meet here exactly 20 years from the date and time, no matter what our condition might be from and what distance we might have to come.
We thought that in 20 years each of us will have our lives work out and our fortune made, whatever they were going to be. So उसने कहा कि हमने उसी दिन उसी रात को यहाँ पर एक प्रॉमिस किया था कि हम लोग 20 साल बाद इसी जगह पर इसी समय पर यहाँ पर मिलेंगे, चाहे हम कितनी भी दूर क्यों ना हो, किसी भी कंडीशन में क्यों ना हो, अगर हम जिंदा होंगे तो हम जरूर यहाँ पर मिलेंगे. It sounds pretty interesting, said the policeman. Rather a long time between me through, it seems to me. Have not you heard from their best friend since you left? तो पुलिस वाले ने कहा ये काफी ज्यादा मजेदार है. क्या तुमने कभी अपने दोस्त से इस बीच में बात की है या तुम दोनों ने कभी एक दूसरे से मिले हो? Well, we did write to each other for a time, said other, but after a year or two we lost track to each other. तो तभी उस आदमी ने बताया कि यस, हम एक दूसरे को लेटर लिखा करते थे. कुछ 1-2 साल पहले हम दोनों की बात हुआ करती थी, पर 1-2 साल पहले से हम दोनों के बीच में बिल्कुल कनेक्शन खत्म हो गया. You see, it is not easy try to make a life in the West, and I got rather busy. But now the Jimmy will meet me here if he alive. For he was always the strongest old champ in the world. तो उसने कहा कि आपको पता है कि वेस्ट में अपना फ्यूचर बनाना रहना बहुत मुश्किल है. सो मैं उस टाइम बहुत बिजी हुआ करता था, पर मुझे पता है कि अगर जिमी जिंदा है तो वो मुझसे जरूर मिलने आएगा. वो बहुत ईमानदार और बहुत अच्छा इंसान था. He will never forget. I came 1,000 miles to stand at the door tonight, and it's worth if my old friend turn ups. तो उसने कहा जैसे कि वो मुझे पता है वो बिल्कुल नहीं भूलेगा यहाँ पर आना. जैसे मैं हजारों किलोमीटर्स चलकर यहाँ पर आया हूँ अपने दोस्त से मिलने, तो वो भी मुझसे मिलने जरूर आएगा. The waiting man pulled out the handsome watch and lied on the watch worth set with all diamonds. तभी उसने अपनी घड़ी निकाली जो एक डायमंड से चमचमाती हुई सज रही थी, और उसमें उसने टाइम देखा. 3 minutes to 10, he announced. It was exactly 10 o'clock when he parted at the restaurant door. तो उसने कहा कि बिल्कुल 10 बजने में 3 मिनट बाकी हैं जब हम रेस्टोरेंट से बाहर निकले थे और हमने ये चीज अनाउंस की थी. डिड प्रिटी वेल इन द वेस्ट डिड नॉट यू, आज द पुलिसमैन. उसने कहा कि वैसे वेस्ट में कैसा रहा सब कुछ? उसने कहा बहुत अच्छा था वो. यू बेट. आई होप जिमी वॉज डन हाफ एज वेल. ही वॉज काइंड ऑफ प्लॉन्डर थ्रू गुड फेलो एज ही वॉज. तो उसने कहा कि मैंने वहां पे काफी चीजें मुझे मिली. आई होप कि जिमी ने यहाँ पर काफी कुछ अच्छा किया होगा. वैसे वो बहुत ज्यादा मतलब स्लो था काम करने में, पर उसने कुछ ना कुछ अच्छा जरूर किया होगा. I have had to compete with some of other sharp minds be successful. A man gets in Grove in New York. It's take the West to make him sharp. तो उसने कहा वेट्स में रहकर मुझे काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिली अपने आप को बहुत अच्छा करने के लिए. मेरी स्किल्स वगैरह जो थी वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो गई और मैं काफ़ी ज़्यादा माइंड के अकॉर्डिंग सक्सेसफुल भी रहा. द पुलिसमैन ट्रिल्ड his club and took the step or two. I will be on my way. Hope your friend comes around soon. How long will you wait? तो तभी पुलिसमैन ने अपने 1-2 कदम आगे बढ़ाए और बोलने लगा कि मैं आशा करता हूँ कि आपका दोस्त आपसे मिलने आएगा, और आप वैसे कितनी देर तक यहाँ पर रुकोगे? I will give him half an hour at least. If Jimmy is alive, he will be here at that time. So long, officer. तो उसने कहा कि मैं यहाँ पर आधे घंटे तक रुकूंगा. अगर जिमी यहाँ पर जिंदा होगा तो वो बिल्कुल टाइम पर मुझसे मिलने आएगा. गुड नाइट सर, said the policeman once more on his beat, checking doors as he went. So तभी पुलिसमैन ने उसे गुड नाइट बोला और वहां से जाना स्टार्ट किया, वैसे ही जैसे वो अपना और दुकानों को चेक करता हुआ आ रहा था, अपना काम कंटिन्यू करते हुए. There was now a fine, cold drizzling falling and steady winds blowing. The few people on the road hurried silently with their hands and their pockets and coat collars turned high. And in the door of hardware store, the man who had came to the 1,000th mile to meet the friend is his youth wait patiently. So वहाँ पर बड़ी ठंडी ठंडी हवाएं चल रही थी.
कुछ लोग थे जो आ रहे थे, बड़े बड़े कोट उन्होंने पहन रखे थे, कॉलर खड़े हुए थे, सब लोग उस दुकान के पास से निकलते हुए जा रहे थे। बस एक आदमी था जो बड़े आराम से अपने दोस्त का इंतजार कर रहा था, जो हजारों किलोमीटर दूरी से चलकर आया था उससे मिलने के लिए। About 20 minutes he waited, and then a tall man in the long overcoat with the collar turned up his ears hurried across the opposite side of the street. He went directly to the waiting man. तभी लगभग 20 मिनट के बाद एक लंबा सा आदमी वहां पर आया, जिसने बड़ा सा कोट पहना हुआ था, जिसके कॉलर खड़े हुए थे, और वो गली की दूसरी साइड से आया जहां पर वो आदमी इंतजार कर रहा था। इज दैट यू बॉब? ही आस्क्ड डॉयटफुली। सो वो उसने एकदम से उस हार्डवेयर की शॉप के पास खड़े हुए आदमी से बोला कि इज दैट यू बॉब? ही आस्क्ड डाउटफुली। तो उसने पूछा कि क्या तुम हो ये बॉब? इज दैट यू जिमी वेल्स? क्राइड द मैन इन द डोरवे। तो वो आदमी जो हार्डवेयर की दुकान के पास खड़ा था वो रोने लगा और बोलने लगा, क्या जिमी ये तुम हो? Bleeds my heart, exclaimed with the new arrival, grasping the other hands with his own. I was certain I had find you here if you were still alive. तो बोलने लगा कि मुझे बड़ी खुशी हुई तुमसे मिलकर, तुम अभी तक जिंदा हो, तुम बड़े बहुत अच्छा लगा। अपनी खुशी को उसने जाहिर किया वहां पर। Well, 20 years is a long time. The old restaurant gone, Bob. I wish it had lasted so we could had another dinner there. How was the West treated you? The old man. तभी बॉब बोला कि 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, हम उसके बाद यहाँ पर मिले हैं। अगर यहाँ पर वो रेस्टोरेंट होता तो हम एक बार फिर से यहाँ पर वो खाना खाते। और बताओ, जब तुम वेस्ट में थे तो सब चीज कैसे रही, वहां पर सब कुछ ठीक था या नहीं? तभी वो आदमी कहता है, इट हैज गिवन टू मी एवरीथिंग आई आस्क्ड इट फॉर. You have changed it, Lord Jimmy. I never thought you were this tall by 2 or 3 inches. तो आदमी बोलता है कि जो मैं चाहता था मुझे वहां पर सब कुछ मिला, काफी अच्छी जगह थी, वो सब कुछ अच्छा रहा। पर उसने बोला, जिमी तुम बहुत ज्यादा चेंज हो गए हो, तुम्हारी हाइट काफी बढ़ गई है, लगभग 2 से 3 इंच तक। ओ आई ग्रो इट बेटर, आई वॉज 20। तो उसने कहा कि मैं बढ़ गया हूँ, जब मैं 20 साल का था तभी मैं थोड़ा लंबा था, तुम्हें याद नहीं है। पर डूइंग वेल इन न्यूयॉर्क जिमी। तो उसने कहा, और जिमी मैं उम्मीद करता हूँ कि तुम न्यूयॉर्क में कुछ अच्छा कर रहे होगे। मॉडरेटली आई हैव अ पोजीशन इन द सिटी डिपार्टमेंट केम ऑन बॉब। we will go around to place I know of and have a good long talk about old times. तो उसने कहा कि चलो बॉब, हम यहाँ से थोड़ा चलते हैं। वैसे मैं एक सिटी डिपार्टमेंट में एक अच्छी पोजीशन पे काम करता हूँ, चलो हम यहाँ से चलते हैं ऐसी जगह जहाँ मैं जानता हूँ, वहां पर हम अच्छा समय बिताएंगे एक साथ। The two men started walking arm in arm. दोनों आदमी हाथ पकड़ के वहां से चलना उन्होंने शुरू किया। The man from the west, basing the glory of his success, was beginning the outline the history of his career. The other listening with interest. तो जो आदमी वेस्ट से आया था, यानी कि बॉब जो था, वो अपनी कहानियां उसे बताने लगा कि वहां पर उसने किस तरीके से सारी चीजें अचीव की, अब वहां का किस तरीके का लाइफस्टाइल था वो। और जिमी बहुत प्यार से वो सारी चीजें आराम से सुनने लगा। एट द कॉर्नर टू द ब्राइटली लिट मेडिसिन स्टोर व्हेन दे केम इनटू द ग्लेयर, the friend turned and looked at each other. The man from the west stopped suddenly and freed his arm. जब बात करते करते वो एक मेडिकल स्टोर तक आ गए, वहां पर वो थोड़ा सा खड़े हुए और एक दूसरे को देखने लगे। तभी जो वेस्ट से आया हुआ आदमी था, उसने अचानक से अपना हाथ जिमी के हाथ से छुटाया। You are not Jimmy Wells, it snapped. 20 years ago, long time, but not long enough to change man's nose from the Roman to the pug. तो जिमी ने वो बॉब ने कहा, जो वेस्ट से आया था, उसने कहा कि जिमी, तुम जिमी नहीं हो। मैं मानता हूँ कि 20 साल बहुत बड़ा टाइम होता है, लोग उसमें बहुत चेंज हो जाते हैं, पर इतने भी चेंज नहीं होते कि एक आदमी की नाक रोमन से पग में हो जाए। ये ऐसा था कि जो रोमन के लोग होते थे उनकी नाक थोड़ी लंबी होती थी, पर जो पग टाइप की जो नाक होती थी वो थोड़ी सी छोटी होती थी, दबी हुई सी। तो वो उसी डिफरेंस के बारे में बात करता है। It sometimes changes a good man into the bad man.
सेट द टॉल मैन। तो तभी जो जिमी बनकर आया था उसने कहा कि ऐसा कभी कभी हो जाता है कि कोई अच्छा इंसान बुरे इंसान में बदल जाता है। यू हैव बीन अंडर अरेस्ट द 10 मिनट्स सिल्की बॉब। तो तभी वो बोलता है कि वो बोलता है कि तुम्हें बॉब 10 मिनट के अंदर यहाँ पर अरेस्ट कर लिया जाएगा। द शिकागो पुलिस थिंकिंग यू मे हैव कम दिस वे वियर्ड एज यू आर वांटेड गो क्वाइटली आर यू। तो उसने कहा कि शिकागो की पुलिस जो है वो तुम्हें अरेस्ट करने वाली है क्योंकि तुम जो आए थे बहुत अलग मतलब दूसरे गलत रास्ते से आए थे, जिसकी वजह से पुलिस जो है वो तुम्हें ढूंढ रही है। दैट सेंसिबल नाउ बिफोर वी गो टू द स्टेशन हेयर्स अ नोट आई वॉज आस्क्ड टू गिव यू। तो उसने कहा कि स्टेशन पर जाने से पहले मैं तुम्हें एक नोट देना चाहता हूँ जो मुझे देने के लिए कहा गया था। यू मे रीड इट हेयर एट द विंडो, इट्स द पॉल्टन वॉल्स। तो उसने कहा कि तुम इसे विंडो के पास जाके पढ़ सकते हो। ये क्या है? एक पॉल्टन वॉल्स है। सो अब इस द मैन फ्रॉम द वेस्ट अनफोल्ड द लिटिल पीस ऑफ पेपर। तो तभी वो आदमी जो वेस्ट से आया था उसने उस पेपर को खोला। हिज हैंड वॉज स्टेडी वेन ही बिगेन टू रीड। उसके हाथ जो थे वो कपकपाने लगे जब उसने उस सब पढ़ना स्टार्ट किया। बट इट ट्रिम्ड अ लिटिल बाय द टाइम ऑफ ही फिनिश द नोट वॉज रेदर शॉर्ट। तो तभी जो टाइम था वो बिल्कुल खत्म हो गया क्योंकि वो नोट जो था वो बहुत छोटा था। मतलब उसे कोई आदमी वहां पर वार्न करने आया था, जो उससे बताया गया था कि तुम गलत रास्ते से आए हो जिसकी वजह से पुलिस तुम्हें ढूंढ रही है, तो तुम यहाँ से जल्दी भाग जाओ। सो यही आपकी स्टोरी थी। सो आई होप कि आप सबको ये अच्छे से समझ में आ गई होगी। सो बच्चों अभी आपको क्या करना है, यू हैव टू रीड अगेन दिस चैप्टर so it will make you understand betterly. So now you have to note these highlighted words on your notebook, and we will send you the meaning of these words as well as the question answer. Okay, so you have all to revise the chapter and learn the question and answer as well as your word meaning. Okay, so till the time, take care of yourself. Bye and thank you.